Delhi Control, Victor Tango, Romeo Kilo, Delta. How do you read? Victor Tango Romeo Kilo Delta Delhi Control reading you 5. Reading you 5, Victor Tango, Romeo Kilo, Delta. ठीक है. Another station, please perform readability check. Delhi Tower, Wicket Tango, Bravo Charlie Delta, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. How do you read? Victor Tango Bravo Charlie Delta Delhi Tower 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 reading you 5. Okay. Okay. Bravo Charlie Delta, give me a plan. ठीक है. Using chart number 7. ठीक है. Give me a flight plan using chart number 7. Okay, sir. Please proceed. And before going ahead, please do let me know whether air prox and this one air traffic circuit conditions are clear to you. या दोनों में कोई सा डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं. Okay, ठीक है. Then go ahead with the flight plan. Using chart number 7, version 2. Mangalore to Tiruchirappalli. Mangalore to Tiruchirappalli, very good. ठीक है. VOML to VOTR. Okay, done. Go ahead. Victor Tango, Bravo Charlie Delta. Okay, let's make it Air India. नहीं, Air India नहीं. Make it go first. ठीक है. Go air के बदले go first बोलना. Go first 786. Go first, 786. A screen not visible. Screen is being shared to all. Please No, sir. confirm Not everyone. sir. It is not visible. Yes. Now is it visible to all? Yes, sir. ठीक है. Okay, go ahead with the flight plan using chart number 7, version 2. Yes, sir. Alternate aerodrome, Chennai. ठीक है. Flight rule, IFR, Airbus. Schedule, full flight. Time, 0400. Time, say again time. 0400. ठीक है. Take distance medium. Route, Whiskey 81. Bangalore, Bangalore. Whiskey 117. 117. Chennai, Chennai. Whiskey 25. Good one. इसके 25. ठीक है.
equipment standard, Mm-hmm. other information, Hmm. live organ on board. ठीक. Okay, just review your plan and let me know if anything you have missed. कुछ छूट रहा है एक बार नजर मारो फटाक से from your side only and do let me know. Flight level क्या है फ्लाइट लेवल? 290. 2 290. very good. 290. Done. Okay, now let me count one by one. Though I can understand कि this is a complete plan, still I need to go one by one. ठीक है, डायरेक्ट देखी हुई चीजों पे भरोसा नहीं करना है. Mangalore to Trichipalli, alternative Chennai. Go first 786. Flight rule IFR. Airbus is the aircraft. Scheduled flight. Time of departure 0400. Wick turbulence medium. Route is so and so. All equipment is standard. Live organ on board and flight level is 290. All 13 information available. Now, please do let me know the time given in the flight plan, that is 0400, whether that is a UTC plan of time or IST time. ये टाइम जो दिया हुआ है इसको UTC में माना जाता है या IST में? UTC. UTC में. तो IST में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा IST के हिसाब से? माइनस करना 5.5 घंटे. टाइम सॉरी, बताइए, प्लस प्लस कैलकुलेट प्लस. टाइम बताइए कैलकुलेट करके. ओके ओके. एक हम्म. मिनट. 2350. 0400. 0935. 935 कहाँ से है? ऑल स्टेशन 9030 is the right answer. 09030. आप प्लस 5 आवर 30 मिनट्स करोगे ना? 09030. तो यू ऑल आर लाइन मेंटेनेंस गाय, राइट? आपको तो टाइम अच्छे से याद होना चाहिए. रोस्टर जो आता है यूटीसी में आता है या आईएसटी में? आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग इन शेड्यूल, बट आई बिलीव कि सब कुछ यूटीसी में आता होगा. आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली यू गाइस आर डूइंग देयर. किस में आता है उधर टाइम वगैरह? यूटीसी में. ठीक है, तो यू शुड पिक अप दिस वेरी फास्ट. 4 o'clock को फटाक से 9:30 बजे बोलना है, ठीक है? बिकॉज समटाइम्स योर रिपोर्टिंग टाइम मॉर्निंग शिफ्ट का यही रहता होगा. फर्स्ट अराइवल, फर्स्ट डिपार्चर. आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट आई होप कि ऐसा होता होगा. ओके, Tango November Sierra, please confirm whether you are ready to give the answer. Tango November Sierra. Let me see who all are there in meeting. Victor Tango, Tango November Sierra. चलो, कोई नहीं. Okay, so if not, then I'll first ask Bravo Charlie Delta to go ahead with the answer. ठीक है? You may please proceed with the answer. The question is, ठीक है? The question is at at 35 nautical mile, at 35 nautical mile from Bangalore. 35 नहीं, थोड़ा और कांस्टेंट रखता हूँ. At 25 nautical mile from Bangalore, rapid cabin decompression
cabin decompression occurred. Take action. Is question clear to all? At 25 nautical mile from Bangalore, rapid cabin decompression occurred. Take action. Okay. चलो मैं एक हेल्प बताता हूँ थोड़ा सा. मेडे पैन जाएगा, ये आप देख लेना, ठीक है. पोजीशन रिपोर्ट करके आप जब अपना सिचुएशन एक्सप्लेन करोगे, जो आपका प्रोबेबल एक्शन रहेगा, दैट शुड बी फर्स्ट लूज योर अल्टीट्यूड और रिक्वेस्ट टू लूज योर अल्टीट्यूड फॉर एट लीस्ट लोअर देन 8,000 फीट और 8,000 फीट, 9,000 फीट भी चलेगा. सी बेसिकली क्या होता है, जो आपका प्रेशराइज्ड एयरक्राफ्ट रहता है, दे आर मेंटेनिंग अ केबिन अल्टीट्यूड फ्रॉम 8,000 फीट, नो नॉट ओनली 8, 5,000 फीट भी, ठीक है. फ्रॉम 5,000 फीट टू 12,000 फीट. एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट वेरी करता है कि किसके एयरक्राफ्ट में कितना मेंटेन करने का प्रोविजन है, किस मैन्युफैक्चरर ने कितना सेट किया है. सो 5,000 फीट से लेके 12,000 फीट तक का केबिन अल्टीट्यूड मेंटेन किया जाता है. भले आप 35,000 फीट पे फ्लाई कर रहे हो, बट एटमॉस्फेयर ऐसा बनाया जाएगा कि आपको लगेगा 12,000 फीट पे फ्लाई कर रहे हो, ठीक है. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ प्रेशराइजेशन. सो वंस your pressurization system fails or your pressurization system start getting deteriorated, प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है, चाहे रैपिड हो या ग्रेजुअल हो, धीरे धीरे, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अपने एयरक्राफ्ट का अल्टीट्यूड 12,000 फीट से नीचे करो, ठीक है. नाउ इसी एक्शन को आप कैसे कम्युनिकेशन में पास ऑन करोगे, प्लीज डू लेट मी नो. ट्राई करो आंसर करने का. Chennai control. मेडे पैन. Mayday. Mayday. Go Mayday. ahead. Mayday. बोलो बोलो, कंटिन्यू. Chennai control. Go first. 786. Airbus A320. With turbulence medium. IFR. Mangalore to Trichypalli. Current position. Flight level. 290. प्रोसीड. Route. 5117. Radial 086. Time now. 0445. 25 nautical mile. 25 25 nautical mile
outbound Bangalore, rapid cave-in, decompression occurred, would like to descend to flight level 80, request रिक्वेस्ट में क्या बोलेंगे? परमिशन, रिक्वेस्ट परमिशन या फिर डिसेंड क्लियरेंस। ओके सर, रिक्वेस्ट परमिशन फॉर डिसेंड। चलेगा। ओके एवरीवन, मॉडिफाई लिटिल हेयर ओनली, ठीक है। जहां पे आपने बोला ना वुड लाइक टू डिसेंड फ्लाइट लेवल 80, वहीं पे बस एक चीज मेंशन कर दो, फॉर फर्दर फ्लाइट, मतलब यहाँ के बाद से हम 8000 फीट पे ही फ्लाई करेंगे। इट इज ओके, ठीक है। नाउ हेयर टू केस कैन बी डन, आइदर यू कैन गो अनप्रेशराइज्ड, ठीक है। So at 8000 feet, below 10,000 feet basically, you can go unpressurized. Environment will be normal. But you can also choose that you want to land nearby. So this is one case where you want to continue. So you will say, would like to descend flight level 80 for further flight. Otherwise, one more case is also there. You can say, would like to descend to flight level 80, ठीक है, and ठीक है, request landing instructions to Bangalore. क्यों? आप यहीं पे मेंशन कर सकते हो, would like to descend flight level 80, will not proceed further, ठीक है, आगे की फ्लाइट नहीं करेंगे, will not proceed further, request instructions to land at Bangalore, estimating Bangalore, क्या था 04, टाइम नाउ 45 है तो 0450, इस टाइप से। एक केस है कि आप ये डिसाइड कर रहे हो कि 8000 फीट पे हम कंटिन्यू करेंगे, ऑल्सो एक्सेप्टेबल। दूसरा केस है कि 8000 फीट पे टेम्परेली डाउन हो रहे हो बट आपको आगे नहीं जाना है, तो आप मेंशन करोगे विल नॉट प्रोसीड फर्दर, आगे नहीं जाऊंगा, रिक्वेस्ट लैंडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर बैंगलोर। क्लियर? दोनों केस समझ में आया सबको या क्लियर क्लियर लिखूं? व्हाट इज इट? ओके सर। अदर स्टेशंस क्लियर है? रोमियो किलो डेल्टा इंडिया विक्टर पापा, थिंग्स आर क्लियर? अच्छा, इसमें हम परमिशन मांगेंगे डिक्रीज करने के, ऑटोमेटिक हम डिक्रीज करेंगे और उसके बाद बताएंगे वो भी इनको कि एक हम केस है। डिक्रीजिंग कर रहे हैं। हाँ, जब जब नॉर्मल कंडीशन रहा करे ना, ठीक है, मेडे तो है तो हम ऑटोमेटिक डिसीजन लेंगे यस डिक्रीज करने यस का यस, और वेरी इन्फॉर्म गुड करेंगे। वेरी गुड, एक वो भी केस है, ठीक है, एक वो भी केस है, ठीक है, आता हूँ उस पर भी आऊंगा, ठीक है। पहले ये दोनों केस क्लियर करिए, ये चीज क्लियर है। एक आपने डिसाइड किया कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, सॉरी, हम आगे बढ़ेंगे विथ 8000 फीट, तो आप यहाँ पे बोलो रिक्वेस्ट डिसेंड टू फ्लाइट लेवल 80 फॉर फर्दर फ्लाइट्स, ठीक है, रिक्वेस्ट आइदर बोल दो परमिशन, ठीक है, रिक्वेस्ट परमिशन टू डिसेंड, या फिर बोल दो रिक्वेस्ट डिसेंड क्लियरेंस, डिसेंड करने के लिए क्लियरेंस दीजिए, एक केस। दूसरा केस कहेगा वुड लाइक टू डिसेंड टू फ्लाइट लेवल 80, विल नॉट प्रोसीड फर्दर, ठीक है, विल नॉट प्रोसीड फर्दर, रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस टू लैंड एट Bangalore, estimating Bangalore,
0450 इस टाइप से। अब जहां पे आपने ये डिसाइड किया ना कि आगे नहीं बढ़ूंगा, वहां पे आप सिचुएशन को थोड़ा और सीरियस दिखा सकते हो। क्या? जैसे आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया ना फ्लाइट लेवल 80 पे आने का, जब आप कंटिन्यू फर्दर करोगे, इस सिनेरियो को अच्छे से समझना। पहले 2 केस क्लियर करो कि आप आगे बढ़ सकते हो लोअर अल्टीट्यूड के साथ, या फिर आप नियर बाय एयरपोर्ट पे लैंड कर सकते हो। ये दोनों केस क्लियर है सबको? यस? यस। अदर स्टेशंस, ब्रेवो चार्ली डेल्टा, रेमो किलो डेल्टा, कौन सा? दोनों केस क्लियर है? ठीक है। अब जहां पे आपने सिचुएशन ज्यादा स्ट्रेसफुल दिखाया ना कि आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम नियर बाय एयरपोर्ट पे लैंड करना चाहते हैं, इसी केस में आप रिक्वेस्ट को अवॉइड कर सकते हो और डायरेक्ट अल्टीट्यूड लूज कर लो, क्योंकि आप पैनिक में हो। तो ये आपको वहां पे अथॉरिटी रहेगी फॉर अ मोमेंट, क्योंकि आप मेडे कॉल दे रहे हो। तो आप सीधे बोलो लीविंग फ्लाइट लेवल 290 फॉर फ्लाइट लेवल 80 will not proceed further। ठीक है? request instructions to land at Bangalore। एक मोमेंट पे जब पायलट कूल है, अच्छा कोई बात नहीं, लोअर अल्टीट्यूड पे चले जाएंगे, काम बन जाएगा। दूसरा सिनेरियो, ऑक्सीजन मास्क डिप्लॉय हो जाता है। जब भी केबिन डिकम्प्रेस होगा ना, सडनली ऑक्सीजन मास्क डिप्लॉय हो जाता है। सो विद दैट पैनिक सिनेरियो यू कैन नॉट कंटिन्यू। एक मोमेंट है कि डिप्लॉय नहीं हो, बट आपको दिखा अचानक से 2000 फीट लूज किया, और ऑक्सीजन कब डिप्लॉय होगा? 12,000 फीट से नीचे आने के बाद। मोस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट 12,000 फीट पे करता है डिप्लॉय, मोस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो आप 29,000 फीट पे हो, केबिन डिकम्प्रेस हुआ, 20,000 पे आ गया। तो पायलट को लगा भाई ये तो रैपिड हो गया। कोई बात नहीं, आराम से रिक्वेस्ट करिए और बोल दीजिए कि हमको 8,000 फीट पे आना है। ठीक है? और उसका रिस्पॉन्स इमीडिएट आएगा। क्यों? क्योंकि आपने मेडे कॉल दिया है। तो आप आगे चल जाओ। दूसरा केस हुआ कि रैपिड केबिन डिकम्प्रेशन ऐसा हुआ कि ऑक्सीजन मास्क भी डिप्लॉय हो गया। नाउ इन दैट केस आप आगे नहीं जा सकते, तो आपको नियर बाय एयरपोर्ट पे लैंड करना है। और इसी केस में आप अगर चाहो तो 8,000 फीट का जो रिक्वेस्ट किया है ना, रिक्वेस्ट करने के बदले डायरेक्टली आप एक्शन ले लो, एयरक्राफ्ट को 8,000 फीट पे डाउन कर लो, एटीसी कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है? क्लियर है सबको? ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि यही सही है वही गलत है, ऑप्शंस है। मान लो कि एक एग्जांपल देता हूं, सपोज आपके ऑफिस में कोई चपरासी है, वो आपको पानी पिलाएगा। सो दैट इज देयर ड्यूटी कि वो आपको पानी पिलाएगा, बट पानी पीने के बाद आप थैंक यू बोलते हो, दैट इज योर कर्टसी। सिमिलरली आप 8,000 फीट पे आ सकते हो, बट कर्टसी वाइज आप अगर रिक्वेस्ट कर लेते हो, दैट इज ऑल्सो ओके। आपके अधिकार क्षेत्र में है, आप डायरेक्ट 8,000 फीट पे डाउन आ गए, दैट इज ऑल्सो ओके। अंडरस्टूड एवरीवन, दोनों केस? यस। अफम तो डिफरेंशिएट है इंटरप्रिटेशन का। मान लो कि कैबिन रैपिड डिक्रीज किया, लेकिन रैपिड का इतना मतलब थोड़ी है कि सडनली 29,000 फीट से जीरो पे आ जाएगा, नहीं। 4,000 फीट अचानक से लूज कर गया, ये भी रैपिड डिक्रीज हुआ। ठीक है? 10,000 फीट अचानक से डिक्रीज कर गया, ये भी रैपिड डिक्रीज हुआ। लेकिन तब तक में ऑक्सीजन मास्क डिप्लॉय नहीं हुआ, तो हमने उसी टाइम एटीसी को इन्फॉर्म कर दिया, भाई अल्टीट्यूड सडनली लूज हो रहा है, एक काम करता हूं 8,000 फीट पे आता हूं और 8,000 फीट पे ही फ्लाई करूंगा फर्दर। वन सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो, अचानक से 10,000 फीट का लॉस आया 2 बार, ऑक्सीजन मास्क डिप्लॉय हो जाएगा पटक से। अब ऑक्सीजन मास्क डिप्लॉय हो गया तो पैसेंजर के साथ ऐसे ही कोहराम मच गया, हो हंगामा होने लगा। सो विद दैट सिनेरियो यू कैन नॉट फ्लाई, सो आस्क टू लैंड नियर बाय। तो दोनों की सिनेरियो आप अपने मन से अज्यूम कर सकते हो। ठीक है? फ्री है पायलट अज्यूम करने के लिए। अगर आपसे एग्जामिनर काउंटर करे तो यू कैन रिप्लाई, सर दिस इज रैपिड डिकम्प्रेशन, इट डजंट मीन कि ऑक्सीजन डिप्लॉय हो गया, वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। ठीक है? आवर एयरक्राफ्ट इज सेफ टू प्रोसीड, सो वी विल फ्लाई बिलो 8,000। वन सिनेरियो।
That is also right. Second one, sir, oxygen mask deployed. We cannot proceed. Land as soon as possible. Another scenario. Clear है? Yes. ठीक है. So basically, in most of the question you will see there are multiple type of answering. It's not always कि यही सही है. नहीं, इतने सारे पायलट हैं और लैंग्वेज में ऐसा कभी होता है कि यही सही वही गलत. बहुत कुछ चलता है अप डाउन. So there are multiple scenario what you can use. So suppose in the response ATC told clear for flight level 80 and अच्छे से सुनना क्या क्या बोल रहा है. Clear for flight level 80. Report reaching altitude. ठीक है, घुमा घुमा के बोलेगा. रिपोर्ट रीचिंग अल्टीट्यूड मतलब आपने 8000 मांगा, 8000 पहुंच के रिपोर्ट करिए. साथ ही साथ बोलेगा कंफर्म सेफ टू फ्लाई फर्दर. चेन्नई कंट्रोल. अब एक एक क्वेश्चन का आंसर दो. टोटल 3 क्वेश्चंस किया, सॉरी टोटल 3 स्टेटमेंट उसने दिए हैं. सबका आंसर दो 1 बाय 1. आगे पीछे दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि विल को पहले बोलेंगे और अफर्मेशन बाद में देंगे. तीनों का आंसर आना चाहिए बस. बोलो, Clear. रीड बैक दियो इसका. Yes, sir. So leaving वेरी गुड. flight level 80. नहीं, फ्लाइट लेवल 290. यू आर ऑन 290. Taking to flight level 290 to flight level 80. इसको इसको इसका इंग्लिश करेक्ट करो, इसका इंग्लिश करेक्ट करो. लीविंग फ्लाइट लेवल 290 फॉर फ्लाइट लेवल 80. बस इतना ही बोलना. लीविंग फ्लाइट लेवल 290 फॉर फ्लाइट लेवल 80. क्लियर. प्रीपोजिशन का बहुत खेला होता है इंग्लिश में ना. जो प्रीपोजिशन है ना, टू, फ्रॉम, दैट, इज, ये सब जो प्रीपोजिशंस आते हैं ना, ये ओवर, ऑन, एट, इन, ये सब जो इंग्लिश के प्रीपोजिशंस हैं, ये पूरा का पूरा मीनिंग बदल देते हैं. सपोज आपने जो पहले बोला था कि लीविंग टू फ्लाइट लेवल 290, इसका मतलब पता है क्या होता है? अगर आप बोल दोगे लीविंग टू फ्लाइट लेवल 290 मतलब आप 29,000 फीट पर जा रहे हो. बट इस केस में क्या है? लीविंग फ्लाइट लेवल 290 यानी आप 29,000 फीट को लीव कर रहे हो. किसके लिए? फॉर मतलब होता है किसके लिए? 8,000 फीट के लिए. अंडरस्टूड. लीविंग फ्लाइट लेवल 290 फॉर फ्लाइट लेवल 80. ओके, गो अहेड. Will go first 786. नहीं, आगे कुछ और क्वेश्चन पूछा है उसने. कंफर्म सेफ टू फ्लाई फर्दर, उसने आपसे एक क्वेरी किया है. ठीक ठाक हो? हाँ, अफर्म क्या? Come safe to flight further. अफर्म वी आर सेफ टू फ्लाई फर्दर, या फिर अफर्म सेफ फॉर फर्दर फ्लाइट. सेफ फॉर Further flight. फर्दर फ्लाइट मतलब वी आर सेफ फॉर फर्दर फ्लाइट. विल रिपोर्ट रीचिंग 8,000 फीट. हो गया. ठीक है. गो फर्स्ट 786. देखो, जैसे विल को बोलते हो ना, विल को से ज्यादा फॉर्मल लगता है ऐसे सब्सटेंशिएट करके बोलना. डिफरेंस पता है क्या? सपोज आप बोलते हो इंग्लिश में, कभी कभी बोलते हो ना या. कुछ लोगों का आदत होता है यस को बोलेंगे या. ठीक है. तो अगर आप किसी सीनियर पर्सन के सामने या बोलो ना तो वो चिढ़ेगा. आप कभी ट्राई करना, किसी सीनियर पर्सन कोई कुछ बात कर रहा हो, आप उसको बोलना या, तो वो आपसे चिढ़ेगा
और डांटेगा भी। उसको क्या सुनना है? यस। ये उनकी मेंटालिटी है। तो अगर आप कई बार होता है, अगर आप शॉर्ट में विल को बोल देते हो ना, गलत नहीं है ये, लेकिन चिढ़ेगा एग्जामिनर, उसको लगेगा ज्यादा स्मार्ट बन रहा है, जो कि नहीं चाहिए। बट ह्यूमन है, किसी का भी ईगो कहीं से भी सेटिस्फाई हो सकता है, ठीक है। तो उसको सुनना रहता है हर चीज डिटेल में, तो हर एक चीज को आराम आराम से बोलने का। लिविंग फ्लाइट लेवल 2 9 0। उसके बाद क्या पूछा? कंफर्म। तो कंफर्म का आंसर अफर्म। क्या पूछा? सेफ टू फ्लाई फर्दर, तो यस, सेफ फॉर फ्लाई फर्दर, मतलब वी आर सेफ फॉर फ्लाई फर्दर। फिर उसने बोला रिपोर्ट रीचिंग अल्टीट्यूड, तो हम बोल देंगे विल रिपोर्ट रीचिंग 8000 फीट। क्लियर? तो जहां तक पॉसिबल हो सब्सटेंशिएट करके बोलिए। गुड वन। Now, we'll give the question regarding air prox. And yes, if you are in practice today, please take that call also. Okay? You only, Bravo Charlie Delta. It is good that you are getting the call now. आपको अब आंसर देने में थोड़ा स्मूथनेस दिख रहा है. Your answer is getting better. I don't know असर किसका है, एक दो दिन डांटने चिल्लाने का असर है या आप खुद से मोटिवेट हुए हो. But your action is, your answers are groomed up now. ठीक है, अभी अच्छा हो चुका है. बट अभी भी बहुत कुछ पढ़ने को बाकी है, तो बंद नहीं करना है, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना है. ओके, द क्वेश्चन इज, ठीक है, यू आर 50 nautical mile from Chennai. One Indian Air Force aircraft overtaken from right and made a sharp turn at 2 nautical mile ahead of you. मैं क्वेश्चन एक बार और एक्सप्लेन करता हूं. You are 50 nautical mile from Chennai. One Indian Air Force aircraft overtaken from right and made a sharp turn at 2 nautical mile ahead of you. Yes, proceed for the answer. पेन हाँ, आराम से. पेन 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 पेन, एक रिदम में. पेन 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 पेन. चेन्नई टावर, चेन्नई चेन्नई कंट्रोल. नहीं नहीं, आराम से आराम से. एक बार फिर से देखो. देखो अप्रोच का कुछ है टीएमए. दिखा? अप्रोच भी इनफाइनाइट लेवल तक है ना. और आपका डिस्टेंस है एग्जैक्ट 50. अप्रोच को लग सकता है कॉल. लगाओ. चेन्नई अप्रोच. Go first 678 on 1 2 गो फर्स्ट 786 था. 786. Okay, incorrection. 786 on 127 decimal niner. Airbus अच्छा, A320. ओके ओके. इस कॉल में अपने को सेक्टर रिपोर्ट नहीं चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी नहीं चाहिए. ठीक है, ना सेक्टर रिपोर्ट चाहिए, ना फ्रीक्वेंसी चाहिए, ना एयरक्राफ्ट टाइप. डायरेक्ट मुद्दा की बात करो. एग्जामिनर ऐसे भी बोल सकता कई बार, मेरे को पूरा राम कहानी मत सुनाओ, सीधा सीधा मेन चीज बोलो. कैसे बोलोगे? Current position. हाँ, वेरी गुड. कॉल साइन के बाद
flight level 80. I'm audible, sir. Sir, I reading you one. I'm audible, sir. Delhi Tower. Go ahead. Yes, sir. Current position, flight level 80. Okay. Hmm. Route with Sir, your screen is not visible. Is it share to Bravo Charlie Delta? दिख रहा है? Yes, Yes, sir, sir. it is visible now. There might be some network glitch होता है. एक बार ट्राई करो रिजॉइन करके. Yes, sir, it is visible now. ठीक है. Please proceed with position report. Flight level 80. Whiskey 25. Radial 215. नहीं 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 Whiskey 25 नहीं है. अच्छा सॉरी फ्रॉम चेन्नई बोल दिया था ना. ओके प्लीज प्रोसीड. Whiskey 25. Radial 215. हम्म Time now. हम्म 0530. हम्म 50 nautical mile outbound. 1 Indian Air Force aircraft overtaken from right and एयरप्रॉक्स एयरपोर्ट से बाद में नहीं बोल सकते क्या? नहीं पहले एयरप्रॉक्स तब उसका डिटेल. एयरब्रोक्स रिस्क फॉर कोलाइजन. रिस्क ऑफ कोलिजन. रिस्क ऑफ कोलिजन. एयरप्रॉक्स रिस्क ऑफ कोलिजन. रिस्क ऑफ कोलिजन. अब बताओ. One Indian Air Force aircraft overtaken from right and made a sharp turn at 2 nautical mile ahead. First, Go ahead. request for appropriate investigation. ठीक है. टाइम ऑफ इंसिडेंस. Incident. Time of incident 0528. Time of incidence 0528. Very good. Go first 786. Very good. Good one. I find this call appropriate. ठीक है, ये सही है. Done. Very good.
सो आपको बस एयरप्रॉक्स पहले बोलना है, ठीक है, हाईलाइट करना है। एंड व्हेनेवर एटीसी और एग्जामिनर विल से कि मेरे को फ्रीक्वेंसी मत बोलो, मेरे को सेक्टर रिपोर्ट मत बोलो, एयरक्राफ्ट मॉडल मत बोलो, तो सीधा कॉल साइन और पोजीशन रिपोर्ट से स्टार्ट करना है हमेशा, ठीक है। उसको फिर सेक्टर वो मत सर बताओ, आईएफआर। हाँ बोलो बोलो। वो पहले ही बोल देगा कि मुझे बताना नहीं है, या फिर जब लिख रहे होंगे नहीं, तब। जब आप एक आध आंसर कर दोगे ना, वो देखेगा आपका ट्रेंड, तो वो फिर आपको मना करेगा उस हिसाब से। बेसिकली क्या होता है बताता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट देखता हूँ, ठीक है, या फिर वो लोग भी बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं कि स्टूडेंट को ना एयरबस 320, आईएफआर कौन सा है, इधर मैंगलोर 2, ठीक है, मैंगलोर 2 त्रिचिपल्ली, ये 4 वर्ड बोलने में स्टूडेंट 1 मिनट से 2 मिनट का टाइम ले लेते हैं, तो चिढ़ता है एग्जामिनर, ठीक है। वो बोलता है फालतू चीज बोलने में तुम इतना टाइम लगा रहे हो, इससे अच्छा तुम मत बोलो, ठीक है। कई एग्जामिनर तो पोजीशन रिपोर्ट भी बोलने को नहीं बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि 5 पैरामीटर बोलना है, इसके लिए इतना टाइम वेस्ट कर रहा है, तो उनको लगता है कि तुम सीधे मुद्दे की बात कर लो। बोलते हैं एग्जामिनर कि मेरे को कुछ मत बोलो, सीधा मुद्दा बोलो कि इस टाइप का कंडीशन है तो क्या आंसर करोगे। तो इट डिपेंड्स। अगर आप एक स्मूथ आंसर करोगे, एक अच्छे फ्लो में आंसर करोगे, ठीक है, तो आप सब बोलो, सब चलेगा। मगर आप अटक अटक के आंसर करोगे, एक बार फ्लाइट लेवल 80 बोल के 2 मिनट के लिए साइलेंस हो गए, फिर थोड़ी देर बाद बोला विस्की 25, फिर थोड़ी देर बाद बोला रेडियल 215, तो बोलेंगे भाई इसे अच्छा मत बोल, ठीक है। तो डिपेंड्स करता है कि आपके फ्लो ऑफ आंसर कैसे हैं, ठीक है। रुकना नहीं है, आंसर करने से पहले तुम 2 मिनट टाइम ले लो, 3 मिनट टाइम ले लो, लेकिन एक फ्लो में बोलो। अगर फ्लो टूटेगा ना, तो एग्जामिनर चिढ़ता है, फिर वो बहुत चीजों को बोलेगा मत बोला कर, ठीक है। आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन देगा कि अगले क्वेश्चन से फ्रीक्वेंसी नहीं बोलना है, अगले क्वेश्चन से पोजीशन रिपोर्ट मत देना, इस टाइप से बोल देगा वो। तो जैसा उसका डिमांड है उसको फुलफिल करना पड़ेगा, बिकॉज ही इज द टॉप। तो बेहतर है कि अपने आंसर का फ्लो ठीक कर लो, कभी नहीं टोकेगा एग्जामिनर, कुछ नहीं टोकेगा। आपके आंसर का फ्लो बेटर है, आप पटापट आंसर देते चले जाओ, वो सुनता चला जाएगा। क्लियर? चलो, so this is it, and today we are going to learn about RCF, ठीक है, just pay little attention. Today we'll move to our further topic that has to be explained. Let me see how much can be explained today. डेविएशन रिपोर्ट, ठीक है। आज हम लोग 2 चीज देखेंगे, ठीक है। एक स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोसीजर, नहीं इसका कल ही देखते हैं डायरेक्ट, बेटर रहेगा, ठीक है। विल कंप्लीट टिल लेक्चर 14 टुडे, ठीक है। लेक्चर 14 तक के सारे कॉल्स आज हम लोग देख लेंगे, जिसमें मेन है आपका सेक्टर रिक्वेस्ट और आरसीएफ। तो पहले आरसीएफ एक्सप्लेन करूंगा, सेक्टर रिपोर्ट स्टिल एडिशनल है, अभी तक के लिए कुछ बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। तो पहले हम लोग देखेंगे आज आरसीएफ, और फिर बचेगा 5 दिन का क्लास। आप देख सकते हो लेक्चर 15 टू लेक्चर 20 5 दिन का क्लास है, जिसमें 3 दिन का क्लास ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हो सकता है तो इसको स्ट्रेच करके मैं 7 दिन 8 दिन ले जाऊं, डिपेंड्स ओवर योर ग्रोथ कि आपका अभी तक का ओवरऑल प्रोग्रेस क्या है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेडियो कम्युनिकेशन फेल प्रोसीजर। क्या होता है, जैसे मान लो कि हम क्लास में पढ़ाते हैं, आपने कई बार अभी तक में कंप्लेन कर दिया है कि सर स्क्रीन विजिबल नहीं है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, सर आप रीडिंग यू वन, आवाज कट गया। इस टाइप से आप लोग कंप्लेन करते रहते हो ना, या मैं भी कई बार कंप्लेन करता हूँ कि नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही है, लाइक दैट। सो थिंक अबाउट दैट कि वी आर यूजिंग अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन समहाउ, ठीक है, ग्राउंड पे है, वायर से कनेक्टेड नेटवर्क है, ब्रॉडबैंड वाईफाई इंटरनेट्स ग्राउंड पे वायर से कनेक्टेड हैं। तो ग्राउंड कनेक्शन होने के बाद भी, या फिर आपके घर के आसपास कोई टावर लगा होगा जो कि दिन रात काम करता है विथ
फिक्स्ड एनर्जी सोर्सेस, बिजली या फिर जनरेटर से चलता है। तो फिक्स्ड एंटीना, फिक्स्ड वायर, इतनी अच्छी स्पीड ग्राउंड पे प्रॉमिस होने के बाद भी आप कई बार कंप्लेन करते रहते हो कि सर आपकी आवाज नहीं आई, आपकी आवाज नहीं आई। थिंक अबाउट एयरक्राफ्ट, ना तो कोई सॉलिड नेटवर्क है, ना ही कोई सैटेलाइट सिस्टम का बहुत ज्यादा यूज है, सिर्फ रेडियो फ्रीक्वेंसी VHF पे, इससे हम पूरा का पूरा कम्युनिकेशन मॉनिटर करते हैं। जब हमारे पास रेडियो था, ट्रांजिस्टर, जब ऑडियो में हम लोग क्रिकेट सुना करते थे, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, आई थिंक आप लोगों के टाइम पे भी होगा ही, आप लोगों ने रेडियो देखा होगा बेसिक, या फिर अभी भी कई के मोबाइल में FM रेडियो वगैरह होते हैं, कार में FM रेडियो होता है। आप कभी गौर करना, उस पे वॉइस की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वो नेटवर्क डिस्टर्ब होते रहता है। तो ग्राउंड पे होने के बाद हमको इतना सारा प्रॉब्लम है, एयरक्राफ्ट तो इन एयर है, कुछ भी प्रॉब्लम कभी भी आ सकता है, ठीक है, एयरक्राफ्ट का इन एयर में होने के कारण। कम्युनिकेशन सिस्टम वही 50 साल पुराना VHF। टेक्नोलॉजी के कारण सेमीकंडक्टर में जो इंप्रूवमेंट आया है, उसके कारण वॉइस क्लैरिटी थोड़ी सी इंप्रूव हुई है बस, ठीक है, वॉइस क्लैरिटी थोड़ी सी इंप्रूव की गई है, स्पीकर वगैरह प्लीजेंट साउंड देता है, बाकी कम्युनिकेशन का सिस्टम सेम है। तो थिंक अबाउट एयरक्राफ्ट और पायलट, कितने मुश्किल में रहते होंगे वो लोग। एंड ऑलवेज देयर इज अ चांस ऑफ माल फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। हम लोग एवियोनिक्स से हैं, नो डाउट वी हैव टू एक्सेप्ट दिस सिनेरियो ऑलवेज। अभी एक बहुत बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट अहमदाबाद में ही हुआ है। मैकेनिकल में आप एक बार को बोल सकते हो कि हमारा सिस्टम फुल प्रूफ है, क्योंकि आपने मैकेनिकल लिंकेज देखा, कंडीशन सही है, 1 घंटा 2 घंटा चलेगा। अगर वो ज्यादा वियर एंड टियर नहीं हुआ है तो मटेरियल स्ट्रेंथ के बेसिस पे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा चल जाएगा। बट रही बात इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता कि कब ये माल फंक्शन कर जाए, ठीक है। इस ट्रूथ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा बीइंग एन एवियोनिक्स इंजीनियर। इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है कि कब ये फेल हो जाए, कौन सा सर्किट कहां से फूंक जाए, किसी को नहीं पता। However, systems are made reliable, but nobody can guarantee कि ये चलेगा ही। इसीलिए फेल सेफ में हमेशा दो LRU लगाए जाते हैं, VHF 2, HF 2। आप देखना, जो सिस्टम डुअल में रहते हैं ना, आधे से ज्यादा चैनल एवियोनिक्स के होंगे, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, वही सब दो लगाए जाते हैं। मैकेनिकल तो एक ही लगाया जाता है, एक रेडर लगा दिया काफी है, काम करेगा ही करेगा, कहाँ जाएगा, ठीक है। व्हील लगा दिया काफी है, लोड लेगा ही लेगा, कहीं नहीं जा रहा है। एलेरॉन एलिवेटर रडर काम करेगा ही, लैंडिंग गियर एक लगा दिया, एक्सटेंड होगा ही होगा। बट एवियोनिक्स में देखा ना, फेडेक, ठीक है, फेल मार दिया, फ्यूल सप्लाई बंद हो गया। फेडेक का ही बदमाशी होगा, आई डेफिनेटली श्योर फ्रॉम माय साइड। जो आपका EC होता है, या ECU कुछ लोग बोलते हैं, इंजन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, इंजन कंट्रोल यूनिट, या फेडेक, इलेक्ट्रॉनिक्स है, पक्का माल फंक्शन मारेगा। तो इस ट्रुथ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा बीइंग एन एवियोनिक्स इंजीनियर। इन फ्यूचर ऑल्सो आपको काम देगा। अगर किसी सिस्टम में स्नैग आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एसोसिएटेड हैं, स्विच है, ट्रांसड्यूसर है, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है, आप उसको सस्पेक्ट कर सकते हो, वो फेल मार सकता है, ठीक है। सो सबसे पॉपुलर है RT एग्जाम का क्वेश्चन कि आपका कम्युनिकेशन सिस्टम फेल मार दिया, ठीक है, रेडियो कम्युनिकेशन फेलियर। कई बार आप देखते हो लिखा रहता है RCF, रेडियो कम्युनिकेशन फेलियर, कई बार लिखा रहेगा RTF, रेडियो टेली कम्युनिकेशन फेलियर, दोनों का मतलब सेम है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में अपने पास क्या रहता है बेसिकली, एंटीना, ट्रांसमीटर या रिसीवर। अगेन, एंटीना इज समहाउ अ मैकेनिकल पोर्शन
मेटालिक रॉड है, तो हम उसको सस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या ये फेल मार देगा, ठीक है, नहीं, ये काम करेगा, अगर इसको पावर पहुंचेगा तो ये काम करेगा, क्योंकि ये मेटल है, मैकेनिकल पोर्शन है। सस्पेक्ट किसको कर सकते हैं, ट्रांसीवर, जो आपका VHF1 VHF2 के LRU है ना, वो फेल मार सकता है। सो देयर इज ए सिनेरियो कि आइदर योर ट्रांसमीटर गॉट फेल्ड, आइदर और रिसीवर गॉट फेल्ड, या फिर अभी के टाइम पे तो ट्रांसीवर होता है ना, तो टोटल RCF फेलियर मींस ट्रांसीवर ही फेल हो गया, ठीक है, दोनों फेल हो गया। पहले ट्रांसमीटर रिसीवर अलग अलग लगाए जाते थे, अभी ट्रांसीवर है, तो आइदर आपका ट्रांसमिशन सिस्टम फेल है, आइदर रिसेप्शन सिस्टम फेल है, या फिर ट्रांसमिट रिसीव हो रहा है, आइदर आपका माइक्रोफोन फेल हो गया, PTT स्टक, PTT क्रैश, आइदर आपका स्पीकर क्रैश हो गया, तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आउट हो गया, उससे प्रॉब्लम क्या हुआ, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम फेल्ड। इज दैट बैकग्राउंड नॉइज डिस्टर्बिंग मच? राइटर का ऑपरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है आज। हाउ एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑन 5? यस सर, आई रेडियो ठीक 5। है, ठीक है, Okay. चलेगा। ओके, सो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो गया, ठीक है, रीजन कुछ भी हो। अब क्या होता है कि जब आपका, अच्छा, आप अपने डिटेल के लिए फर्दर इन सारी चीजों को पढ़ सकते हो कि रेडियो सिस्टम अगर फेल हो गया तो क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं। ये कुछ क्विक नोट्स हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ना। 8 पॉइंट है, बहुत अच्छे पॉइंट्स है, ये मैंने लिखा है, समझ समझ के मैंने ही लिखा है। सो इम्प्लीकेशंस क्या आएंगे कम्युनिकेशन सिस्टम फेल होने से? आपको जो बीच बीच में पोजीशन रिपोर्ट करते हुए जाना था, आप नहीं जा पाओगे। आपको कहीं पे डिसेंड मांगना था, नहीं मांग पाए। कहीं पे क्लाइंबिंग रिक्वेस्ट मांगनी थी, नहीं मांग पाए। कहीं पे चेंज ओवर प्लान था, नहीं हो पाया। तो कम्युनिकेशन सिस्टम फेल है तो आपको फ्लाइट प्लान जो एग्जीक्यूट करना था वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक डेविएशन परमिशन लेके करना पड़ता है। भले वो आपको अप्रूवल दे दिया है, लेकिन पूछ के कि कर लूं, ATC बोल देगा यस कर लो, लाइक दैट। सो यू आर अंडर RCF। कई बार क्या होगा, क्वेश्चन में क्लियरली लिख देगा कि एट 70 नॉटिकल माइल टू बैंगलोर, इस टाइप से यू आर अंडर RCF ऐसा लिख देगा, ठीक है। और कई बार क्या लिख देगा, जैसे मान लो कि पिछला क्वेश्चन नंबर थर्ड ए में दे देगा यू आर 70 नॉटिकल माइल टू बैंगलोर, पोजीशन रिपोर्ट का कॉल। थर्ड बी बना के लिख देगा इन subsequent to previous question, इन subsequent to previous मतलब पिछले कंडीशन को समझते हुए यू आर अंडर RCF। देखो, पहले क्वेश्चन में क्लियरली लिखा कि जब आप इतने दूर थे तो RCF हो गया। दूसरे क्वेश्चन में पहला पे पोजीशन रिपोर्ट और दूसरे में लिख दिया इन सब्सिक्वेंट टू प्रीवियस यू आर अंडर RCF। दोनों का मतलब सेम है कि जब आप बेंगलोर से 70 नॉटिकल माइल पहुंचने वाले हो, बेंगलोर तक जाने वाले हो, 70 नॉटिकल माइल पहले आपका रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो गया, ठीक है। अब दो सिनेरियो, क्वेश्चन में कई बार क्लियरली लिख देगा योर कम्युनिकेशन सिस्टम फेल, यू आर अंडर RCF, इस टाइप से लिख देगा। और कई बार क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ पोजीशन रिपोर्ट का क्वेश्चन दे देगा। जब आप पोजीशन रिपोर्ट कर दोगे ना तो एग्जामिनर चुप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। एग्जामिनर एकदम साइलेंट रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, हाँ ना कुछ नहीं, चुपचाप रहेगा। तो उस तब आपको अपने आप समझ जाना है कि वो RCF कंडीशन सिमुलेट करना चाह रहा है। या तो एग्जामिनर पूरा का पूरा चुप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, या फिर वो बोलेगा, आपसे पूछेगा ऐसे वर्बली RCF कंडीशन समझते हो,
अब बोलो कि हाँ सर समझते हैं, तो बोलेगा ठीक है फिर आरसीएफ का कॉल कर दो, या फिर उधर से वो बोलेगा एज्यूम नो रिप्लाई। सबका मतलब सेम है, या तो वो चुपचाप रह जाए, या फिर वो बोल दे एज्यूम नो रिप्लाई, या फिर वो आपसे वर्बली पूछ लेगा कि आरसीएफ समझ के आरसीएफ का कॉल दे दो। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशन में या तो पूरा साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा है, या उसने मुंह से बोल दिया एज्यूम नो रिप्लाई, या फिर वो आपसे वर्बली पूछेगा कि आरसीएफ का कॉल कर दो। तो तीनों कंडीशन में आपको ये समझना है कि आपका कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो गया। अब रही बात आरसीएफ का कॉल कैसे करते हैं। आरसीएफ के कॉल में हम लोग एक कंडीशन यूज करते हैं जिसको बोलते हैं ट्रांसमिशन ब्लाइंड। अंधे में तीर मारो, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं। सपोज आपके कार का ब्रेक फेल हो गया, तो कर तो कुछ सकते नहीं हो, स्टिल गियर बैक गियर लगा दो, क्या पता रुक जाए, लाइक दैट। अंधेरे में तीर मारो, क्या पता किसी को लग जाए। तो आप क्या करोगे, ब्लाइंड ट्रांसमिशन, कि बोल देते हैं सुनेगा सुनेगा, नहीं सुनेगा नहीं सुनेगा, वैसे भी नहीं सुनेगा, लेकिन एक बार हम अपने साइड से बोलते हैं, क्या पता काम कर रहा हो सिस्टम, या फिर आप जिस एटीसी से बात करने वाले थे उसी एटीसी के साथ पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। ठीक है, मुंबई कंट्रोल का ही कंट्रोल ऑफिस खराब हो गया है, दूसरा एटीसी कोई अवेलेबल है। ठीक है, इस टाइप से। तो आप उस कंडीशन को सिमुलेट करने के लिए ब्लाइंड ट्रांसमिशन करते हो कि क्या पता कोई सुन ले, या फिर एटीसी सारा खराब हो गया, दूसरा कोई एयरक्राफ्ट सुनेगा जो आपके आसपास उड़ रहा हो, इस टाइप से। तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्लाइंड ट्रांसमिशन। अब ब्लाइंड ट्रांसमिशन करते कैसे हैं ये आपको बताऊंगा, बट जब आपका रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो जाए तो आप ब्लाइंड ट्रांसमिशन करते हो। इतना समझ में आया सबको कि रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, ब्लाइंड ट्रांसमिशन। क्लियर है सबको? यस। ठीक है, तो हमको पता चला कि रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम फेल तो करना है ब्लाइंड ट्रांसमिशन। अब इसके अंदर दो कंडीशन, क्या, अगर क्वेश्चन में क्लियरली कहीं पे लिखा हुआ है यू आर अंडर आरसीएफ, या फिर लिखा हुआ है योर कम्युनिकेशन सिस्टम फेल, या फिर लिखा हुआ है योर ट्रांसमिशन फेल, योर रिसीवर फेल, इस टाइप से अगर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है फेल या आरसीएफ कंडीशन क्वेश्चन में क्लियरली लिख दिया है, तो डायरेक्ट ब्लाइंड ट्रांसमिशन करेंगे। ठीक है, सिनेरियो को समझो। अगर क्वेश्चन में लिख दिया है यू आर अंडर आरसीएफ, योर ट्रांसमिशन फेल, योर कम्युनिकेशन सिस्टम फेल, तो डायरेक्ट ब्लाइंड ट्रांसमिशन। अगर क्वेश्चन में, ठीक है, अगर क्वेश्चन में आरसीएफ कंडीशन नहीं लिखा हुआ है लेकिन एग्जामिनर चुपचाप बैठा है, एज्यूम नो रिप्लाई बोल दिया, या बोला आरसीएफ कंडीशन सिमुलेट करो, इस केस में एटलीस्ट 2 एडिशनल एटीसी को कॉल करके हम चेक करेंगे कि मेरा सही में कम्युनिकेशन सिस्टम खराब है या सिर्फ ये नहीं सुन रहा है। अगर क्वेश्चन में आरसीएफ लिख दिया तो डायरेक्ट ब्लाइंड ट्रांसमिशन। अगर क्वेश्चन में आरसीएफ नहीं लिखा तो कम से कम 3 एटीसी को कॉल करोगे, एक जिसको आपने पोजीशन रिपोर्ट दिया वो तो हो ही गया, प्लस 2 एडिशनल एटीसी को कॉल करके आप चेक करोगे कि क्या मेरी आवाज सही में नहीं कोई सुन रहा है। अगर तीनों के तीनों एटीसी ने आपकी आवाज नहीं सुनी तब फिर आपको ब्लाइंड ट्रांसमिशन करना है। ठीक है, एक्शन सबका एक ही है, आफ्टर ऑल आपको ब्लाइंड ट्रांसमिशन ही करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आरसीएफ लिख दिया तो डायरेक्ट ब्लाइंड ट्रांसमिशन कर लो, क्वेश्चन में आरसीएफ नहीं लिखा तो आसपास के 2-3 एटीसी को कॉल करके, कम से कम 2 एडिशनल एटीसी को कॉल करके आप चेक करोगे, तब जाके ब्लाइंड ट्रांसमिशन करोगे। और जो 2 एडिशनल एटीसी को आप कॉल करके चेक करोगे, इसके लिए आप रीडेबिलिटी चेक इनिशिएट कर सकते हो या फिर स्टेशन रेज कर सकते हो। ठीक है, सपोज मेरा डिफॉल्ट एटीसी था चेन्नई कंट्रोल, चेन्नई कंट्रोल को हमने पोजीशन रिपोर्ट दिया, उसने बोल दिया एज्यूम नो रिप्लाई,
तो एक एटीसी फेल मार गया। अगला कॉल हम करेंगे मुंबई अप्रोच को, आसपास के एटीसी को देखते हुए। अगर पास में कोई दूसरा बड़ा एयरपोर्ट है जिसके पास कंट्रोल है तो उससे कंट्रोल को कॉल कर देंगे। लेकिन अगर उसका आसपास कोई बड़ा एयरपोर्ट नहीं है तो उसी एयरपोर्ट के दूसरे एटीसी ऑफिस को, तो अप्रोच को कॉल कर लिया। इसने भी बोला नहीं सुना। फिर पीछे बेंगलोर अप्रोच है तो बेंगलोर अप्रोच को कॉल कर देंगे। ठीक है कि क्या वो सुन पा रहा है क्या? उसने भी बोल दिया कि नहीं, मैं भी नहीं सुन रहा हूं। अब तीनों ने डिनाई कर दिया। अब जाके हम ब्लाइंड ट्रांसमिशन करेंगे। इज दिस क्लियर टू ऑल? देखो चेन्नई का कंडीशन लेते हैं। चेन्नई कंट्रोल ने फेल कर दिया, चेन्नई कंट्रोल से रिस्पॉन्स नहीं आया। ओके। चेन्नई अप्रोच से भी रिस्पॉन्स नहीं आया। ओके। फिर आसपास कोई बड़ा एयरपोर्ट है? हाँ, बेंगलोर है। बेंगलोर के पास अप्रोच है, सबसे बड़ा ऑफिस। तो बेंगलोर अप्रोच को कॉल कर दिया, इसने भी रिजल्ट नहीं दिया। 3 एटीसी से रिस्पॉन्स नहीं आया, मतलब सही में हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम फेल है। अब जाके ब्लाइंड ट्रांसमिशन कर देंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? बट सर अगर दिया नहीं होगा तो जो एग्जामिनर होगा वो खुद ही बताएगा कि मैं ब्लाइंड ब्लाइंड ट्रांसमिशन करना पड़ेगा, सिमुलेट करना पड़ेगा। नहीं, अगर से अगेन योर डाउट। हाँ, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा कि आरसीएफ वगैरह है या फिर ये मेल फंक्शन हो गया हमारा टेलीकम्युनिकेशन, तो हमें डायरेक्ट ब्लाइंड ट्रांसमिशन करना होगा। अगर नहीं नहीं, दिया होता तो वो खुद ही बताएगा हमें करना पड़ेगा। यस, नहीं एक वो बार करना बताएगा नहीं। उसका 3 सिनेरियो है। वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा, उसका 3 सिनेरियो है। वो डायरेक्ट बोल भी सकता है, या फिर वो चुपचाप बैठा रहेगा, या फिर वो बोलेगा एज्यूम नो रिप्लाई। तब आपको समझ जाना है कि ये हमको आरसीएफ कंडीशन के लिए बोल रहा है। ठीक है। पहला केस है कि क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख दिया यू आर अंडर आरसीएफ। दूसरा केस है क्वेश्चन रहेगा सीधा सीधा पोजीशन रिपोर्ट का। जब आप पोजीशन रिपोर्ट कर दोगे तो उधर से रॉजर वॉजर कुछ बोलेगा ही नहीं, चुप रहेगा, और ना ही गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा। तो आप पूछोगे ही हाउ डू यू रीड, तो वो बोलेगा एज्यूम नो रिप्लाई। मतलब समझ जाएगा अच्छा ये हमको ब्लाइंड ट्रांसमिशन करवाना चाह रहा है। इस केस में आपको डायरेक्ट ब्लाइंड ट्रांसमिशन नहीं करना है। इस केस में आपको 3 एटीसी को स्टेशन रेज करके तब ब्लाइंड ट्रांसमिशन करना है। अगर क्वेश्चन में आरसीएफ लिख दिया तो डायरेक्ट ब्लाइंड ट्रांसमिशन। क्वेश्चन में आरसीएफ नहीं लिखा है, एग्जामिनर अपने साइड से बोल रहा है करने को, तो पहले 3 एटीसी देन ब्लाइंड ट्रांसमिशन। इज इट क्लियर नाउ? ओके सर। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग, अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। चलो एक सिनेरियो उठाते हैं सेम, ठीक है, एज गिवन इन द चार्ट। चेन्नई का ही सिनेरियो लेके कॉल करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा यू आर 70 नॉटिकल माइल टू चेन्नई। ठीक है, यही क्वेश्चन है, पोजीशन रिपोर्ट का क्वेश्चन है। यू आर 70 नॉटिकल माइल टू चेन्नई। नोट करो सब लोग, 70 नॉटिकल माइल टू चेन्नई। अब आप क्या करोगे? पोजीशन रिपोर्ट करोगे। कैसे? हैव अ लुक। यू विल से चेन्नई कंट्रोल go first 786, position on flight level 80। फ्लाइट लेवल 80 क्यों? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने 29,000 फीट छोड़ दिया है। तो फ्लाइट लेवल 80, विस्की 117, ठीक है, रेडियल 30, करेक्शन, रेडियल 286, रेडियल 286, टाइम नाउ 0455, 70 nautical mile inbound Chennai. Estimating Chennai 0510, Lekap 0530, Trichipalli 0550, ETA Trichipalli, सॉरी 0550। ये आपने पोजीशन रिपोर्ट दिया। अब इसके रिस्पॉन्स में एग्जामिनर या तो साइलेंट रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा,
या फिर बोलेगा अज्यूम नो रिप्लाई। तो जब वो बोले ना अज्यूम नो रिप्लाई, तो आपको लिखना है, इस साइड लिखो अज्यूम नो रिप्लाई, और अगर वो साइलेंट है तो लिखो नो रिप्लाई, कि रिप्लाई ही नहीं आया उधर से। ठीक है, इस टाइप से लिखो अज्यूम नो रिप्लाई। तो आप उससे पूछोगे ही दोबारा, क्या पूछोगे? चेन्नई कंट्रोल गो फर्स्ट 786, हाउ डू यू रीड? ठीक है, हाउ डू यू रीड? तो वो बोलेगा आरसीएफ समझते हो, इसी टाइप से बोलेगा। या फिर इंग्लिश में बोलेगा डू यू नो आरसीएफ, तो आप बोलोगे हाँ सर समझते हैं, तो बोलेगा चलो आरसीएफ है। या फिर वो बोलेगा अज्यूम नो रिप्लाई, तो आप यहाँ लिखो अज्यूम नो रिप्लाई। मतलब अब आपको दो अलग अलग एटीसी से बात करनी है। एक ने सरेंडर कर दिया, किसने? चेन्नई कंट्रोल ने। तो दूसरे से पूछेंगे चेन्नई अप्रोच गो फर्स्ट 786, आप चाहो तो पूरा लिख दो हाउ डू यू रीड। ठीक है, रीडेबिलिटी चेक कर लो। या फिर चाहो तो खाली स्टेशन रेज कर दो, जो हमने पढ़ा था, चेन्नई कंट्रोल गो फर्स्ट 786, दोनों सही है। ठीक है, उधर से भी नो रिप्लाई आया, तो आप इधर लिख दो नो रिप्लाई, यानी दो एटीसी ने सरेंडर कर दिया। तीसरा एटीसी चेन्नई का अप्रोच सरेंडर कर दिया, कंट्रोल सरेंडर कर दिया, टावर नहीं, अल्टीट्यूड बहुत कम है और डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा दूर है, तो चेन्नई के टावर को कॉल नहीं लगाएंगे। आसपास कोई दूसरा बड़ा एयरपोर्ट ढूंढेंगे। बेंगलोर एक बड़ा एयरपोर्ट है जिसका अप्रोच का रेंज काफी ज्यादा है। चलो अप्रोच को कॉल कर लेते हैं। बेंगलोर अप्रोच गो फर्स्ट 786, हाउ डू यू रीड, या फिर सिर्फ स्टेशन रेज कर दो। इधर से भी बोला नो रिप्लाई। अब समझ में आ गया कि हमारा आरसीएफ हो चुका है। ठीक है, मतलब हमको कोई सुन नहीं रहा है। अब स्टार्ट करेंगे ब्लाइंड ट्रांसमिशन। किसको? ओरिजिनल एटीसी को। ठीक है, ब्लाइंड ट्रांसमिशन स्टार्ट करेंगे ओरिजिनल एटीसी को। कैसे जाएगा ब्लाइंड ट्रांसमिशन? हैव अ लुक। ब्लाइंड ट्रांसमिशन का कॉल जाता है चेन्नई कंट्रोल गो फर्स्ट 786 ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड ऑन 118.9। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिस मत करना। किस फ्रीक्वेंसी पे आप ब्लाइंड ट्रांसमिट कर रहे हो, ये देखने वाली बात होती है। अगर आपको कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, तब आप ब्लाइंड ट्रांसमिशन करते हो 1 to 1.5 पे। क्रिटिकल सिनेरियो में इंजन फेल हो गया, एटीसी सुन ही नहीं रहा, तब आप 1 to 1 पे ब्लाइंड ट्रांसमिशन करते हो। बट नॉर्मल सिनेरियो है, तब आपको ब्लाइंड ट्रांसमिशन करना है, तो आप उसी एटीसी के फ्रीक्वेंसी पे ब्लाइंड ट्रांसमिशन करोगे जिस एटीसी से बात रेडियो करते अगर कम हो। मतलब रीडिंग मी टू, जस्ट अ सेकंड। yes, sir. ठीक है, सो आई एम सेइंग व्हेन यू आर इन इमरजेंसी और क्रिटिकल सिनेरियो, तब आप ब्लाइंड ट्रांसमिशन करते हो 1 to 1.5। तो जब भी आप ब्लाइंड ट्रांसमिशन यूज करो ना, उसके आगे फ्रीक्वेंसी जरूर मेंशन करो। ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड ऑन किस पे? 1 to 1.5 पे या किसी और फ्रीक्वेंसी पे। तो क्रिटिकल सिनेरियो में ब्लाइंड ट्रांसमिशन होता है 1 to 1.5 पे, लेकिन ये नॉर्मल सिनेरियो है, बस कम्युनिकेशन फेल हुआ है, एयरक्राफ्ट पे कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, तो हम चेन्नई कंट्रोल के फ्रीक्वेंसी पे ही ब्लाइंड ट्रांसमिशन करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कम्युनिकेशन फेल नहीं होता तो हम किससे बात करते? चेन्नई कंट्रोल से। और अब कम्युनिकेशन फेल हो गया तो कोई बात नहीं, हम चेन्नई कंट्रोल को ही ब्लाइंड ट्रांसमिट करेंगे। तो इससे सिर्फ चेन्नई कंट्रोल नहीं, हर वो एयरक्राफ्ट जो चेन्नई कंट्रोल को ट्यून है, जिसने अपनी फ्रीक्वेंसी 118.9 सेट कर रखी है, यानी हमारे आसपास के हर एक एयरक्राफ्ट मेरी बात को सुनेंगे, इंक्लूडिंग चेन्नई कंट्रोल। सो चेक हम लोग भले 2-3 एटीसी से करेंगे, लेकिन ब्लाइंड ट्रांसमिशन जाएगा ओरिजिनल एटीसी को, फर्स्ट वाले एटीसी को, जो हमारा डिफॉल्ट एटीसी है। सो चेन्नई कंट्रोल गो फर्स्ट 786
ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड ऑन 118.9, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी पे हम क्या कर रहे हैं भैया, ब्लाइंड ट्रांसमिट कर रहे हैं। हाँ भाई बताओ क्या दिक्कत है। एयरबस 320 मैंगलोर टू त्रिचिपल्ली, हमारा जहाज है एयरबस 320 जो कि बेंगलोर से त्रिचिपल्ली जा रहा है, ठीक है। पोजीशन है हमारा फ्लाइट लेवल 80, विस्की 117, रेडियल 286, टाइम नाउ 0450, 70 नॉटिकल माइल इनबाउंड चेन्नई। ये हो गया हमारा पोजीशन, ठीक है। एस्टिमेटिंग चेन्नई 0500, लेकाप 0510, ETA त्रिचिपल्ली, ठीक है 0530। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज मिस किया, जहां पे आप बोलोगे ना एयरबस 320 मैंगलोर टू त्रिचिपल्ली, यहीं पे बोलना है नेगेटिव कॉन्टैक्ट विथ ATC। यानी आपने ब्लाइंड ट्रांसमिशन क्यों किया, क्योंकि हमारा नेगेटिव कॉन्टैक्ट है ATC के साथ, ठीक है। सो आफ्टर दिस, आफ्टर सेइंग एयरबस 320, अपना सेक्टर रिपोर्ट के बाद आप बोल दो नेगेटिव कॉन्टैक्ट विथ ATC, ठीक है। तो ये रहा एक हमारा कॉल। लेकिन RCF का कॉल 2 सेक्शन में होता है। एक बार आपने बोल दिया, ये हो गया एक सेक्शन। दूसरा सेक्शन होगा आई से अगेन, एक ही चीज को 2 बार बोलोगे। याद करो हमने बोला था कभी वर्ड ट्वाइस, कि हम एक ही चीज को 2 बार बोलते हैं। कब, जब हम पैनिक में होते हैं। तो यहाँ तो कम्युनिकेशन फेल है, यस स्टिल दिस इज ए पैनिक सिचुएशन, तो हम लोग बोलेंगे आई से अगेन, और जैसा हमने सेक्शन 1 में लिखा है सेम टू सेम सेक्शन 2 में चिपका देंगे। आई से अगेन, गो फर्स्ट 876, transmitting blind on 118.9er, Airbus 320 मैंगलोर टू त्रिचिपल्ली, ठीक है। नेगेटिव कॉन्टैक्ट विथ ATC। पोजीशन है हमारा फ्लाइट लेवल 80, विस्की 117, रूट रेडियल 286, ठीक है। टाइम नाउ 0450, 70 नॉटिकल माइल इनबाउंड चेन्नई। एस्टिमेटिंग चेन्नई 0500, लेकाप 0510, ETA त्रिचिपल्ली 0530। यही खत्म नहीं हुआ, विल ट्रांसमिट अगेन, हम दोबारा से कॉल करेंगे। कब, या तो कोई टाइम रेफरेंस बोल दो या कोई लोकेशन रेफरेंस बोल दो। विल ट्रांसमिट अगेन, अभी टाइम कितना हो रहा है 4:50, तो विल ट्रांसमिट अगेन एट 0500, ठीक है। या तो ये बोल लो या फिर बोल दो विल ट्रांसमिट अगेन रीचिंग चेन्नई, या फिर विल ट्रांसमिट अगेन ओवरहेड चेन्नई। चेन्नई पहुंच के कॉल कर देंगे। अब हुआ खत्म, आई फ्लाई 786। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ RCF कॉल। 2 सेक्शन में होगा, सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों सेम रहेंगे, और दिस सेक्शन इज बीइंग स्प्लिटेड बाय अ फ्रेज आई से अगेन। आप 2 बार बोलोगे एक चीज को, जहां पे पहले सेक्शन में आप ये मेंशन करोगे, ठीक है, कि वी आर ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड ऑन द फ्रीक्वेंसी सो एंड सो, अपना पोजीशन रिपोर्ट और अपने एस्टिमेट्स, स्प्लिटेड बाय आई से अगेन। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं कि मैं ट्रांसमिट ब्लाइंड कर रहा हूं क्योंकि हमारा नेगेटिव कॉन्टैक्ट है ATC के साथ। हमारा पोजीशन ये रहा, हमारे एस्टिमेट्स ये रहे, और मैं एक बार फिर से कॉल करूंगा। कब, चेन्नई पहुंच के कॉल कर दूंगा, या अभी 4:50 हो रहे हैं, 5 बजे एक बार फिर से कॉल कर दूंगा, ठीक है। सो मेन चीज क्या है, हाईलाइट करता हूं टर्म्स। ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड किस फ्रीक्वेंसी पे कर रहे हो, पहला इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग, नेगेटिव कॉन्टैक्ट विथ ATC मेंशन करना है, स्प्लिटेड बाय आई से अगेन, एंड
विल ट्रांसमिट अगेन, कब? तो टोटल 4 इंपॉर्टेंट टर्म है आरसीएफ कॉल के। ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड किस फ्रीक्वेंसी पे कर रहे हो? नेगेटिव कॉन्टैक्ट विद एटीसी। सेक्शन 1 सिंपल पोजीशन रिपोर्ट दे दिया, स्प्लिट करो आई से अगेन बोल के, और जैसा आपने सेक्शन 1 में बोला सेम टू सेम दूसरे सेक्शन में बोलना है। टाइम सेविंग के लिए आप ऊपर देख के नीचे पढ़ भी सकते हो। एक बार आपने मेहनत कर ली ये सब, नीचे फिर फटाफट पढ़ दो, और लास्ट में बोलो कि विल ट्रांसमिट अगेन कब, या तो किसी टाइम रेफरेंस पे या किसी लोकेशन रेफरेंस पे। हो गया आरसीएफ का कॉल। समझ में आया सबको, या कोई डाउट है किसी को? क्लियर? ब्रावो आ चार्ली गया। डेल्टा रोमियो किलो डेल्टा, समझ में आया? कंफर्म सर। कुछ नहीं है, बस सेम पोजीशन रिपोर्ट हम दे देंगे ये बोल के कि हमारा एटी के साथ कांटेक्ट नहीं है, तो हम हवा में तीर मार रहे हैं। अगर कोई सुन लिया तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, हम अपने फ्लाइट प्लान से स्टिक होके ही चलेंगे। और सबसे बड़ी चीज, जब आरसीएफ हो गया तो अपने फ्लाइट प्लान से बिल्कुल डेविएट मत होना, बिल्कुल डेविएट मत होना। आप फ्लाइट प्लान फॉलो करते हुए चलो, कुछ भी एक्सीडेंट हो जाए आपको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, ठीक है? क्योंकि अगर आपसे कम्युनिकेशन नहीं होता है ना, तो सबसे पहले एटीसी आपके फ्लाइट प्लान को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि ये वाला एयरक्राफ्ट इतने बजे यहां से क्रॉस करेगा, बच के रहो, ठीक है? तो आप हमेशा अपने फ्लाइट प्लान को फॉलो करो, कम्युनिकेशन फेल भी हो गया कोई बात नहीं। और ये तो सिनेरियो तब था जब एग्जामिनर ने आरसीएफ कंडीशन सिमुलेट किया, तो आपने 1-2 एटीसी को कॉल किया। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में ही लिख दिया होता कि यू आर अंडर आरसीएफ, तो डायरेक्ट हम ब्लाइंड ट्रांसमिशन कॉल ही करते। डायरेक्ट यही होता है आंसर हमारा, लास्ट वाला पेज, ठीक है? आफ्टर ऑल आंसर हमारा यही है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आरसीएफ नहीं लिखा तो 2-3 एटीसी को कॉल करने के बाद, और अगर लिख दिया तो डायरेक्ट ब्लाइंड ट्रांसमिशन का कॉल चला जाएगा। समझ में आ रहा है सिनेरियो सबको? कब क्या कॉल देना है? 2 ही केस है, या तो डायरेक्ट या फॉलो ऑन लेके। तो फॉलो ऑन आप आसपास के एटीसी से लेते हो। कि क्या कोई मेरी बात सुन रहा है? क्या कोई मेरी बात सुन रहा है? नहीं सुन रहा है, ओके, अब अंधे में तीर मार देता हूं, लग जाए तो ठीक है, नहीं लगा तो भी हमको मत बोलना, मैंने तो अपना काम कर दिया। क्लियर है ये चीज सबको? कंफर्म सर। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो आई विल होप कि आप लोग इसको नोट डाउन किए होंगे और इसको एक बार थॉरो रीड आउट मारेंगे आप लोग, ठीक है? आई एम लिविंग दिस क्लास अर्ली हेयर, हाफ एन आवर बिफोर। Go and have a thorough readout of RCF condition today itself. आज ही एक बार पढ़ लो, ठीक है? हाँ, go ahead. जो हम तीनों टावर को कॉल कर रहे हैं वो किसी को भी कर सकते हैं या फिर नहीं, आप उसी एटीसी को कॉल करोगे। अगर मान लो कि आरसीएफ नहीं होता तो आप किसको कॉल करते? जिस एटीसी को आप कम्युनिकेशन ऑन रहने पे बात करते, उसी एटीसी को आप कम्युनिकेशन ऑफ रहने पे भी बात करेंगे, ठीक है? ओके सर। हम्म, और जो अगर बाकी हाँ, अगर कम्युनिकेशन फेल नहीं होता तो आपका कॉल जाता चेन्नई कंट्रोल को, तो ब्लाइंड ट्रांसमिशन भी चेन्नई कंट्रोल को ही जाएगा। और बाकी के जो 2 एटीसी हैं वो आसपास के सीनियर ऑफिसर्स को हमेशा ढूंढो, कंट्रोल या अप्रोच में से ट्राई करो, क्योंकि टावर का रेंज बहुत कम हो जाता है, ठीक है? तो सर एक आसपास डाउट के, है, हाँ हाँ, अगर दूसरे एटीसी को लग गया तो क्या करेंगे? वेरी गुड, तो वो कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक है? उसका भी आगे एक कंडीशन पढ़ेंगे, रिले, एक कंडीशन आएगा, रिले टॉपिक ही है पूरा। सिर्फ दूसरा एटीसी ही नहीं, क्या किसी दूसरे एयरक्राफ्ट ने भी रिप्लाई दे दिया तो कि हाँ भाई तुम ब्लाइंड ट्रांसमिशन कर रहे थे, मैं सुन रहा हूं, पढ़ेंगे आगे रिले, ठीक है? बट क्वेश्चन में आपको दूसरे एटीसी को बोलने देगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि वो आरसीएफ सिमुलेट करना चाह रहा है,
ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतना ही समझिए, आगे आएगा वो कंडीशन। बराबर चलिए डेल्टा, ऑल डाउट्स क्लियर? कौन सा? अच्छा, हमारा ट्रांसमीटर ही खराब है, जैसे पीटीटी खराब है, तो भी हम ब्लाइंड ट्रांसमीटर करेंगे? यस यस यस, ब्लाइंड ट्रांसमिशन हम लोग फेल सेफ के लिए कर देते हैं। ठीक है, ओ देखो, पीटीटी आपका खराब नहीं हो सकता, उसमें रीसेट स्विच रहता है हमेशा, और पायलट का पीटीटी अटक गया तो को पायलट का पीटीटी चालू है, इस टाइप से रहता है ना। और आप अगर होता पीटीटी, है। हाँ, पीटीटी आप प्रेस करोगे ना मोर देन 1 मिनट, ये स्टक हो जाएगा, स्प्रिंग लोडेड रहता है, और आफ्टर 1 मिनट फिर ये रीसेट हो जाएगा। ठीक है, सो मल्टीपल सिनेरियो, पायलट का पीटीटी स्टक हो गया, पायलट का वीएचएफ बंद कर देंगे, वीएचएफ 2 से कॉल करेंगे, को पायलट को बोलेंगे तुम कॉल करो भाई। ठीक है, वो भी बंद हो गया, पीटीटी स्टक हो गया, पीटीटी डिस्कनेक्ट कर देंगे, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपका अगर पीटीटी पुश होके ही प्रेस रह गया, तो मुझे आप लोग अगर एविनिक्स से एक्सपर्ट हो तो आपको पता होगा, अगर वो सिस्टम गार्मिन का है, ठीक है, तो 35 सेकेंड्स के बाद आपका ट्रांसमिशन माइक ऑफ हो जाएगा, यानी आपका पीटीटी स्विच डिसेबल हो जाएगा 35 सेकेंड्स में। रॉकवेल कॉलिंस में ये 30 सेकेंड्स का है, ठीक है, 30 से 50 सेकेंड्स का। अगर आपके एयरक्राफ्ट में रॉकवेल कॉलिंस सिस्टम लगा हुआ है तो 30 से 50 सेकेंड में पीटीटी डिसेबल हो जाएगा, यानी आपका कंट्रोल कॉलम वाला स्विच बंद हो जाएगा। फिर बूम माइक यूज करो, हैंड माइक जो दिया हुआ रहता है अलग से, उसका यूज करो। ठीक है, यस। ओके, ऑल डाउट क्लियर टू एवरीवन? अफम सर। ठीक है, हाँ बोलो। ओके सर। बराबर चलिए, ठीक है, ठीक है, देन आई एम क्लोजिंग दिस क्लास हेयर ओनली। रीड आउट करो, आरसीएफ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में, हर एक सेट में आरसीएफ का कॉल देता ही देता है। ठीक है, आरसीएफ का कॉल आएगा ही आएगा। आरसीएफ और मेडे या पैन पैन, ये दोनों ऐसे सिनेरियो हैं कि इसके बिना क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, तो इसके लिए तो तैयार ही रहो। और पोजीशन रिपोर्ट तो बदनाम है, ये तो सेपरेटली भी पूछ सकता है, और नहीं भी पूछा तो हर एक मेडे पैन पैन कॉल में पोजीशन रिपोर्ट जाएगा ही जाएगा, आरसीएफ कॉल में पोजीशन रिपोर्ट जाएगा ही जाएगा। तो मैं जो लास्ट 5 डेज में टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोजीशन रिपोर्ट डिफॉल्ट कॉल बन जाता है हर एक कॉल में, बिना पोजीशन रिपोर्ट के कॉल ही नहीं जाएगा। सो जस्ट हैव अ थोरो रीड आउट, क्लोजिंग दिस मीटिंग हाफ एन आवर अगो। अच्छे से रीड आउट करो, नोट करो, और पूरा पढ़ के रेडी रहो। कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा आरसीएफ कंडीशंस के, एंड देन वी विल मूव अहेड फर्दर। ठीक है, देन दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल सी यू टुमारो सेम 2100 आवर्स। चलो, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।